तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, उसको हम लोग थोड़ा शॉर्ट में रिवाइज करेंगे अभी। ओके, रेडी सब लोग? मेरा रिप्लाई थोड़ा फटाफट दिया करो। अच्छा, वॉइस इज लो, नेटवर्क चेक करो आपका। मेरे ख्याल से आवाज आना चाहिए। नाउ इट्स क्लियर। ओके, सो लास्ट लेक्चर न्यू चैप्टर था, स्टार्ट किया था हैलोजन डेरिवेटिव। शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। ओके, तो इंट्रोडक्शन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। RH अल्केन। ओके, जो मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया वही सब कुछ है, बट थोड़ा सा आपके लिए PDF फॉर्मेट में लिखा हुआ है। ओके, थोड़ा गो थ्रू करेंगे जो लास्ट लेक्चर में एब्सेंट थे उनके लिए, और आगे कंटिन्यू करेंगे। तो व्हाट आर अल्केन? व्हाट आर अल्केन? Aliphatic saturated hydrocarbon. When we remove one hydrogen atom, from alkane, when we remove one hydrogen atom from alkane and is replaced by halogen, compound is obtained, is called as what? Alkyl halide. IUPAC name is what? Haloalkane. IUPAC name is what? Haloalkane. Next, okay, next arenes. Okay, arenes means what? Aromatic compound. When similarly, when we remove one hydrogen atom from aromatic compound benzene and is replaced by halogen, the compound is obtained, is called as what? Aryl halide, haloarenes. Definitions था। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, definitions है haloalkanes and haloarenes. Haloalkane which contain halogen atom, okay, attached to sp3 hybridized carbon. You have to remember sp3. What is the meaning of sp3? Carbon carbon single bond. Similarly, in haloarenes is attached to what? sp2 hybridized carbon atom in aromatic ring. Okay, हुआ था ये सबको? याद आ रहा है कि नहीं? लास्ट लेक्चर में हुआ था। नेक्स्ट, हेलोअल्केन के एग्जांपल्स हैं हेलोइथेन, हेलोअरेन्स। ओके, नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोअल्केन। Classified mainly in two types, monohaloalkane and polyhaloalkane. Mono means only one hydrogen atom replaced by one halogen atom. Poly means more than one hydrogen atom replaced by halogen atom. So first, monohaloalkane which contain only one halogen atom, okay, which are further classified in three types: first, primary, secondary and tertiary alkyl halide. What is primary alkyl halide? Which attached to only halogen atom attached to primary carbon atom. देखो, what is primary alkyl halide? Alkyl halide in which halogen atom attached to what? Primary carbon atom. Called as what? Primary alkyl halide. Next, what is secondary? When halogen attached to secondary carbon atom. आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो halogen है वो इस कार्बन को अटैच है, वो दो अलग अलग और कार्बन को अटैच है। मतलब ये जो कार्बन है ये क्या है? सेकेंडरी है। यस और नो? तो क्या आएगा यहाँ पे? When in alkyl halide halogen attached to secondary carbon atom called as what? Secondary alkyl halide. Next, tertiary alkyl halide. Okay, next, primary, secondary and then tertiary. When halogen atom attached to tertiary carbon atom, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1, 2, 3 कार्बन एटम। तो ये जो कार्बन है 3 कार्बन को अटैच है, तो ये क्या हो गया? टर्शरी। सो व्हेन हाइड्रोजन एटम अटैच टू टर्शरी कार्बन एटम कॉल्ड एज व्हाट? टर्शरी अल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट, आपके सामने क्वेश्चन है 2 मिथाइल 2 क्लोरोप्रोपेन इज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी अल्काइल हैलाइड। सिंपल एमसीक्यूज है, आंसर दे सकता है कोई? 2 methyl 2 chloropropane is dash alkyl halide. C the tertiary alkyl halide. Correct answer. First of all draw the structure. कैसे ड्रॉ करेंगे? मैं कहूंगा कि मेरे पास प्रोपेन है, तो प्रोपेन के लिए 1, 2, 3 कार्बन। ओके, उसके बाद
कार्बन के पास क्या होगा, उन्होंने कहा है सेकेंड पे मिथाइल है, उसके बाद सेकेंड पे क्लोरो भी है, रिमेनिंग वैलेंसी कंप्लीटेड बाय हाइड्रोजन। ये स्ट्रक्चर अभी हम लोगों ने पढ़ा, लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन है, प्रोपेन 2 क्लोरो 2 मिथाइल। तो हैलोजन जिस कार्बन को अटैच है वो कार्बन क्या है, टर्शरी। तो सी आंसर है, करेक्ट है, वेरी गुड। नजरीन ने आंसर दिया है, वेरी गुड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड? एनीवन? इथाइल क्लोराइड, 2 ब्रोमो प्रोपेन, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। A, ethyl chloride is the secondary? No, Nazreen. Always remember कि अगर आपके पास इथाइल है, मिथाइल है, तो वो प्राइमरी होगा, बिकॉज उसमें सेकेंडरी टर्शरी वगैरह तो आता ही नहीं है। एन, आइसो एंड नियो जितने भी होंगे वो सब प्राइमरी होते हैं, ठीक है। एन, आइसो, नियो ये सब क्या होते हैं, प्राइमरी होते हैं। बस आइसो प्रोपाइल जो होगा, आइसो प्रोपाइल, ठीक है, वो सेकेंडरी होता है, ठीक है। अदरवाइज आइसो ब्यूटाइल ये प्राइमरी है। टर्शरी तो पता ही चलता है नाम से, टर्शरी है। इथाइल प्राइमरी है। तो ये जो 2 ब्रोमोप्रोपेन है ना, 1 2 3 और Br जो है वो सेकेंड कार्बन को अटैच है। तो अकॉर्डिंग टू IUPAC नेम, 2 ब्रोमोप्रोपेन is the correct answer for secondary alkyl halide. Am I clear? Yes or no? Yes. Okay. चलो आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीहेलोअल्केन। पढ़ा है हम लोग ने, व्हाट इज पॉलीहेलोअल्केन। तो डायहेलोअल्केन है, ट्राई है, टेट्रा है। डाय भी आगे हमारे पास टाइप्स हैं। क्या होगा, डाय विच कंटेनिंग 2 हेलोजन एटम्स, फर्दर क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स, जेमिनल डायहालाइड, विसिनल डायहालाइड। व्हाट इज जेमिनल डायहालाइड? व्हेन हाइड्रोजन एटम अटैच टू सेम कार्बन एटम, करेक्ट। तो सेम देखो दिया है क्या वहां पे, देखते हैं हम लोग। जेमिनल, व्हाट इज जेमिनल डायहालाइड? हाईलाइट किया है मैंने, डायहालाइड इन विच हाइड्रोजन एटम अटैच टू सेम कार्बन एटम कॉल्ड एज जेमिनल डायहालाइड। ओके, 1,1, 2,2, 3,3 these are the examples of what geminal dihalide. Next, vicinal, attached to adjacent carbon atom, attached to what, adjacent, V दिख रहा है कि नहीं, adjacent carbon, remember V, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, डायहालाइड attached to adjacent carbon, 1,2, 2,3, 3,4 are the example of vicinal dihalide. Then try, when 3 halogen atom attached to carbon atom, 4 halogen atom होंगे तो उसे हम लोग कहेंगे टेट्रा हेलोजन कंपाउंड और टेट्रा हेलो अल्केन। क्लियर है? उसके लिए कुछ एमसीक्यू देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जेमिनल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर विसिनल। तो ये सब एमसीक्यू है, ये आपके प्रैक्टिस के लिए है, आपको इन सबको सॉल्व करना है, ठीक है। देखो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ एक ही क्वेश्चन दिया था, अब जो आपको पीडीएफ मिलने वाले हैं वो आपको लिखने हैं, वो आपके होमवर्क होंगे, ठीक है। क्लियर है सबको? एनी डाउट? चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोअल्केन, ओके, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोअरीन। After classification of haloalkane, mono and poly, haloarenes are also classified in 2 types, mono and haloarenes and polyhaloarenes. It's too simple. अगर मैं कहूँ कि 1 halogen atom replace होगा, तो what is arenes? मैंने बताया था अभी, arenes means aromatic compound. लास्ट लेक्चर में ये मैं नहीं बता पा रहा था, मतलब हो गया था, इतना डिफिकल्ट तो है नहीं कि इसको एक्सप्लेन करना चाहिए। arenes means aromatic compound, benzene, aromatic ring, ओके। देख सकते हैं आप क्या होगा, haloarenes ओनली 1 हेलोजन एटम प्रेजेंट इन मोनो हेलोअरीन, मतलब मेरे पास जो बेंजीन रिंग है, ठीक है, ये 1 हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंजीन इज रिप्लेस्ड बाय ओनली 1 हेलोजन एटम, ठीक है। तो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन में नहीं पढ़ा था, लेकिन वो सेम ही आता है, मोनो हेलोअरीन एरोमेटिक में होगा, ठीक है। दोनों कंबाइन में पढ़ेंगे हम लोग, तो थोड़ा इजी हो जाएगा। सो ओनली 1 हेलोजन अटैच टू एरोमेटिक रिंग, मोनो हेलोअरीन। नेक्स्ट, पॉली हेलोअरीन, 2 डायहेलोअरीन एंड ट्राई। इसमें टेट्रा नहीं है, डाई क्या होगा, ट्राई होगा, करेक्ट। बहुत इजी है,
डायहेलोअरिन 2 हेलोजन एटम होंगे, करेक्ट। ट्राइहेलोअरिन 3 हेलोजन एटम होंगे। इजी है। अल्केन में डाई ट्राई टेट्रा है और अरिन्स में ओनली डाई एंड ट्राई है। ओके, तो ये बहुत इजी था। नेक्स्ट, नियोपेंटाइल क्लोराइड। देखो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, नियोपेंटाइल क्लोराइड इज एग्जांपल ऑफ व्हाट, अभी बताया था मैंने, क्या होगा, एन आइसोनियो, क्या होगा ये, प्राइमरी अल्काइल हलाइड, मतलब आंसर मेरा होगा ए। ओके, तो थोड़ा ध्यान देंगे, याद रखना है आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये सब एग्जांपल्स जो है आपको सॉल्व करने हैं, एमसीक्यू जो दिए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए। अगर उसमें आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछेंगे। नेक्स्ट, द क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलो अल्केन कंपाउंड। लास्ट लेक्चर में ही हुआ था मोनो, अगर आपको याद होगा मैंने बताया था कि हमें मोनो हेलोजन कंपाउंड को ही पढ़ना है, तो इसका क्लासिफिकेशन अलग से है। इसमें अल्काइल हेलाइड है, हेलो, उसके बाद अलाइल हेलाइड है, बेंजाइलिक है, बिकॉज इसका क्लासिफिकेशन किसके ऊपर डिपेंड है, द क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलो अल्केन on the basis of hybridization. On the basis of what? Hybridization. Rohan Yadav, chapter name, halogen derivative of alkane. रोहन जी क्या हुआ, गुड मॉर्निंग। So the classification of monohalogen compound based on hybridization, three types. First, when halogen attached to sp3 hybridized carbon, when halogen attached to sp2 hybridized carbon, when halogen attached to sp hybridized carbon. sp3 means what, carbon carbon single bond, sp2 मतलब carbon carbon double bond, sp मतलब carbon carbon triple bond। करेक्ट है, वो आएगी लास्ट लेक्चर में ये। यस, तो चलो इसको ही हम लोग रिवाइज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्या है हमारे पास, पहले द कंपाउंड विच कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एंड हैलोजन बॉन्ड। हैलोजन मींस व्हाट, आइदर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके, फर्स्ट हमारे पास फर्स्ट टाइप है, दैट इज अल्काइल हलाइड, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा। अल्काइल हलाइड, व्हेन वन हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन रिप्लेस्ड बाय हैलोजन कॉल्ड एज अल्काइल हलाइड। ओके, विच आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स, that is primary, secondary and tertiary alkyl halide। तो बहुत इजी है, जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास है allylic halide। व्हाट इज allylic halide? तो व्हेन halogen atom is attached to sp3 hybridized carbon next to carbon carbon double bond is called as what, allylic halide। ये जो कार्बन है, इस कार्बन को हम लोग कहेंगे allylic कार्बन। क्लियर है? देखो डेफिनेशन जो यहाँ पे मैंने आपको कल नहीं बताया था लास्ट लेक्चर में, हैलोजन एटम बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दैट इज अलाइलिक कार्बन। यस और नो? तो जो कुछ मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया वो सब कुछ पीडीएफ में आपके सामने कलर के साथ दिया हुआ है, प्रेजेंटेशन के साथ दिया हुआ है। बस आपको एक बार अच्छे से इसको लिखना है, याद करना है, समझना है। नेक्स्ट अलाइलिक के बाद आएगा बेंजाइलिक। Similar, when halogen atom attached to sp3 hybridized carbon atom, when halogen atom attached to sp3 hybridized carbon atom next to aromatic ring is called as what, benzylic halide। मैंने लास्ट लेक्चर में ये भी बताया था, याद रखो, ये बेंजीन रिंग है, अरिंग, करेक्ट। मैं जब इससे हाइड्रोजन रिमूव करूंगा तो ये हो जाएगा फिनाइल, और उसके बाद CH2, तो ये हो जाएगा बेंजाइल। याद रखो, कब बेंजाइल होगा, कब वो बेंजीन होगा, कब वो फिनाइल होगा। अगर मैं इस पूरे स्ट्रक्चर को अल्केन कंसीडर करता हूँ, पेरेंट अल्केन, तो इसका नाम होगा बेंजीन। जैसे हम लोग लिखते हैं ना, क्लोरोमीथेन, ब्रोमोइथेन, आइडोप्रोपेन, तो ये अल्केन जब होगा, ये स्ट्रक्चर जब अल्केन होगा तो उसे हम लोग नाम देंगे बेंजीन। पर जैसे मैंने कहा, मीथेन से एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो मिथाइल, प्रोपेन प्रोपाइल, इथेन इथाइल। वैसे बेंजीन से बेंजाइल नहीं, बेंजीन से जब मिलेगा वो क्या होगा, फिनाइल। करेक्ट, क्या बताया मैंने, फिनाइल। मतलब अगर इसे मैं एरोमेटिक कंपाउंड में अल्केन कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, अल्काइल कंसीडर कर रहा हूँ, तो ये स्ट्रक्चर फिनाइल बन जाएगा।
और CH2 अटैच होगा, उसके बाद वो बेंजाइल बनेगा। याद रहेगा सबको? यस और नो? तो ये उसी का एग्जांपल है। नेक्स्ट, in which of the following compound halogen atom attached to sp3 hybridized carbon? ethyl chloride, alkyl chloride, benzyl chloride, all of these सिंपल है, ऑल ऑफ द अबव एक आंसर होगा, इसमें सब में आएगा। ये सब एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने हैं, मैं आपको जानबूझ के होमवर्क में दे रहा हूँ। देन नेक्स्ट जो है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन कंपाउंड, विनाइल एंड अराइल, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। देखो, when halogen attached to sp2 hybridized carbon, it's two of type, हम लोग कहेंगे first is vinyl halide. What is vinyl halide? So when halogen is directly attached to sp2 hybridized carbon, sp2 में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, बट अगर वो एलिफेटिक है तो उसे विनाइल कहेंगे, एलिफेटिक है तो उसे विनाइल कहेंगे, और वही अगर वो एरोमेटिक हो गया तो उसे हम लोग बेंजाइल कहेंगे। अगर वो एलिफेटिक की जगह पे क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया, तो ये क्या हो गया, अराइल हलाइड हो गया, जिसे हम लोग हेलो अरेंज कहते हैं। अभी हुआ था। यस और नो? कम ऑन, रिप्लाई नहीं आ रहा है, इतने सारे बच्चे हैं लेक्चर में, लेकिन रिप्लाई बहुत कम जनता आता है। यस नो, यस नो, यस नो, जो भी है रिप्लाई तो दो। यस तो टाइप कर ही सकते हैं। हाँ, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। आपको समझ में तो आ रहा है ना, ये हो चुका है, इसलिए थोड़ा स्पीड में जा रहा हूं मैं। ठीक है, ये लास्ट लेक्चर में हुआ है, जस्ट रिवाइज कर रहे हैं हम लोग, ताकि आज का लेक्चर आगे का समझ में आए। नेक्स्ट, आफ्टर दिस एक अल्काइन बचा हुआ है। व्हेन हैलोजन एटम अटैच टू sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, कॉल्ड एज व्हाट? हेलो अल्काइन, करेक्ट। और ये उसका एग्जांपल है। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि हेलोजन जो है वो डायरेक्टली ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को अटैच है, तो ये हेलो अल्काइन का एग्जांपल है। ओके, चलो आगे जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट, उसके बाद आप इस क्वेश्चन सबको सॉल्व करेंगे, ये आप सभी के लिए होमवर्क है। ओके, चलो मिलते हैं, देखते हैं आगे। तो आफ्टर इंट्रोडक्शन नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट IUPAC नेम। लास्ट लेक्चर में ये भी हुआ है, शॉर्ट में रिवाइज करेंगे IUPAC नेम को। मैंने देखो इसमें ना आपको एक्सप्लेन करके दिया है कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, जिनके कॉमन नेम, IUPAC नेम एज वेल एज उनका टाइप एक्सप्लेन किया है, जो हमें समझना बहुत जरूरी है। मिथाइल ब्रोमाइड, ब्रोमोमिथेन इज द IUPAC नेम, एंड टाइप इज व्हाट? प्राइमरी अल्काइल हलाइड। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, अलाइलिक, बेंजाइलिक, विनाइलिक, ये समझना बहुत जरूरी है, तो उनके टाइप भी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट, सेकंड स्ट्रक्चर इज व्हाट? इथाइल ब्रोमाइड। व्हेन हैलोजन अटैच्ड टू प्राइमरी कार्बन एटम, इट्स प्राइमरी अल्काइल हाइलाइड। अगेन ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन, 2 कार्बन है, इट इज इथेन। नेक्स्ट, 3 कार्बन है स्ट्रेट चेन में, N प्रोपाइल क्लोराइड। हैलोजन अटैच्ड टू फर्स्ट कार्बन एटम, 1 क्लोरोप्रोपेन। अगेन इज एग्जांपल ऑफ व्हाट? प्राइमरी अल्काइल हाइलाइड। यस और नो? कम ऑन, फास्ट रिप्लाई आना चाहिए। यस और नो पूछ रहा हूँ तो यस 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 यस। मोर देन 50 स्टूडेंट लेक्चर में है, 5 जन का भी रिप्लाई नहीं आ रहा है। मुझे कैसे समझ में आएगा कि आपको समझ में आया है? एक तो आप लोग आवाज भी नहीं देते। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, दैट इज 2 क्लोरोप्रोपेन। हाइड्रोजन अटैच टू सेकेंडरी कार्बन, हेंस इट इज टाइप कौन सा होगा? ये कौन सा टाइप है? ये दिस इज व्हाट? सेकेंडरी कार्बन। तो टाइप देखो, आप देख सकते हैं, सेकेंडरी अल्काइल हलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हलाइड। ओके, अब मैंने आपको बताया भी था कि सेकेंडरी में और आइसो ये सेम होगा, सेकेंडरी एंड आइसो प्रोपाइल के लिए सेम है, करेक्ट। अदरवाइज आइसो हमेशा क्या होगा? प्राइमरी, बट सिर्फ प्रोपाइल में आइसो क्या है? सेकेंडरी। क्लियर हो गया? याद रहेगा, IUPAC ने मिट्स 2 क्लोरोप्रोपेन। देखो ये सब चीजों को समझने के लिए मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं। नेक्स्ट, आप देख सकते हैं आइसो का एग्जांपल दिया है मैंने, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। हाउ आइसो इज प्राइमरी? तो आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड आपके सामने एग्जांपल्स है, आप चेक कर सकते हैं क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे। आयोडीन,
प्राइमरी कार्बन को अटैच है। ये स्ट्रेट चेन में 3 कार्बन है, प्रोपेन, सेकेंड पे मिथाइल है, तो इट्स 1 आयोडो 2 मिथाइल प्रोपेन, इट इज IUPAC नेम। आइसोब्यूटाइल इज अ कॉमन नेम, आइसो है, मींस इट इज व्हाट, प्राइमरी। यस और नो? क्या क्या बताया था मैंने? ऑलवेज रिमेंबर, एन, आइसो एंड नियो आर प्राइमरी अल्काइल ग्रुप, हमेशा याद रखो। एनी डाउट? एनी डाउट? ओके, next example is what? 2-bromobutane, too easy, halogen atom attached to secondary carbon atom, hence it is example of secondary alkyl halide, बहुत easy है, दिखता भी हम लोग को यहाँ पे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 2-chloro 2-methyl propane, 2-chloro 2-methyl propane, ये है लॉन्गेस्ट चेन, क्लोरीन अटैच है जिस कार्बन को वो है टर्शरी, मतलब ये हो गया एग्जाम्पल टर्शरी अल्काइल का। ठीक है, बहुत सिंपल से है एग्जाम्पल भी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे नियो, अभी मैंने बताया था नियो हमेशा क्या होगा, प्राइमरी। देखो वही आया क्या नियो के बारे में, मैंने वही बताया। क्या दिया है यहाँ पे कि हेलोजन है, ये 5 कार्बन है, सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल, तो नियो हो गया। टोटल 5 कार्बन पेंटाइल टाइप है नियो। बट हेलोजन जिस कार्बन को अटैच है वो सिर्फ एक कार्बन को अटैच है, ये इसलिए क्या हो गया, प्राइमरी हो गया। यस और नो? तो ये क्या हो गया, प्राइमरी। एनी डाउट? क्लियर हुआ है सबको? आगे जाते हैं। अभी देखो मेरे पास जो एग्जांपल है, अब आ गया विनाइल। व्हाट इज विनाइल? व्हाट इज विनाइल? व्हेन हेलोजन अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, तो ये विनाइल है। यस है, 2 कार्बन है, इथीन हो गया, क्लोरोइथीन, IUPAC नेम, विनाइल क्लोराइड कॉमन नेम, एंड टाइप हो गया विनाइलिक हलाइड। इजी है। नेक्स्ट, अब जरा ध्यान से देखो, लॉन्गेस्ट चेन में डबल बॉन्ड है, लॉन्गेस्ट चेन में डबल बॉन्ड है, करेक्ट, लॉन्गेस्ट चेन में डबल बॉन्ड है, बट क्या है यहाँ पे, क्या दिखाई दे रहा है कि डबल बॉन्ड होने के बाद ब्रोमीन इज नियरेस्ट फ्रॉम राइट हैंड साइड, डबल बॉन्ड इज नियरेस्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो हम लोग प्रेफरेंस डबल बॉन्ड को देंगे। करेक्ट, याद रखो हमेशा अल्केन अल्कीन हो, हम लोग हमेशा डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते, तो नंबरिंग जो होगा वो लेफ्ट हैंड साइड से होगा, तो ये 1, ये 2, ये 3, तो इसका मतलब है ब्रोमीन जो है वो थर्ड कार्बन को अटैच है और प्रोपिन का पोजीशन 1 है, इसलिए इसका IUPAC नेम होगा इट्स 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन, 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन। क्लियर है सबको? And what about type? Halogen is attached to what? sp3 hybridized carbon next to carbon carbon double bond. Hence it is allylic halide. Hence it is what? Allylic halide. समझ में आया है तो फटाफट फटाफट यस लिख दो। सिर्फ 2 जन को समझ में आया, 3, 4, 5, 6, कॉमन नेम नहीं समझा। ओके, अलाइल, अलाइल कहते हैं इसे, कॉमन नेम मतलब क्या है, ये जो अल्काइल होता है जैसे इसे अलाइल ग्रुप कहते हैं, ये कार्बन जो है वो अलाइलिक कार्बन है, इसे अलाइल कहते हैं, अलाइल कार्बन ही ग्रुप ही वो, उसमें कुछ याद रखने जैसा पार्ट है, उसको समझ जैसा कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिखाई दे रहा है कि मेरे पास हेलोजन है। देखो 11th में मैंने IUPAC नेम आपको पढ़ा है,
अगर आपको स्पेशल केसेस याद होंगे, ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग को CH3 अटैच है, तो क्या होगा इसका IUPAC नेम? इसे हम लोग कहेंगे टोलुइन, अगर आपको याद होगा। याद है क्या? मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन, ये एक्चुअल नाम होना चाहिए और टोलुइन ये कॉमन नेम है। बट ये स्पेशल केस है जिसको हम लोग स्टार मार्क करके मैंने बताया था आपको। बहुत सारे कॉमन नेम बताए थे, बहुत सारे ऐसे स्पेशल केस थे, टोलुइन, एनालीन, एनिसोल, बेंजाल्डिहाइड, एसिटोफिनॉन, बेंजोफिनॉन, फिनॉल, these are the what? फ्यूमिंग। करेक्ट, वेरी गुड। तो ये सब क्या है? स्पेशल केसेस थे। करेक्ट, तो उसमें टोलुइन था कि अगर मेरे पास मिथाइल बेंजीन है तो वो क्या होगा, उसे हम लोग टोलुइन कहेंगे, तो वही IUPAC में यूज किया। अगर ये नहीं होता तो इसका IUPAC नेम होता क्लोरोबेंजीन, सॉरी, इसका IUPAC नेम होता क्लोरोबेंजीन। करेक्ट। बट अब ये है मिथाइल, तो हम लोग उससे क्या कहेंगे, ये हो जाएगा पूरा टोलुइन ग्रुप। और टोलुइन अगर 1 होगा, मिथाइल थोड़ी होगा, तो इसका मतलब क्लोरीन का पोजीशन 2 हो गया, इसलिए इसका IUPAC हो गया 2-फ्लोरोक्लोरीन। क्या हो गया? ये पूरा ग्रुप जो है, पूरा ग्रुप जो है वो है टोलुइन। करेक्ट, और ये सब क्लोरीन का पोजीशन है 2। समझ में आया कि नहीं? yes or no? अराइल मतलब अभी तो पढ़ाया था, अराइल बेंजीन भूल गए? What is aryl group? Benzene ring attached to halogen atom. Haloarin. IUPAC name. Called as what? Aryl halide. टाइप है, तो क्या यहाँ पे हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली बेंजीन रिंग को अटैच है? यस, इसलिए इसका टाइप अराइल हैलाइड है। अब रहा सवाल IUPAC नेम का, तो मैंने वही कहा कि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच है बेंजीन को। ओके, नेटवर्क इशू की वजह से मैं सुनाई दिया। ओके, नो प्रॉब्लम। बाकी सबको क्लियर हुआ अभी? समझ में आया सबको? अब बताओ, अब टाइप समझ में आया, स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? देखो जरा, ये हेलोजन है, ये इस sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को अटैच है, जो एरोमेटिक रिंग को अटैच है, तो ये बेंजाइल ग्रुप हो गया। अब रहा सवाल IUPAC नेम का, तो हेलोजन एक ही कार्बन को अटैच है, एलिफेटिक चेन में एक ही कार्बन है, हेंस इट इज मीथेन। अब मीथेन को ये भी अटैच है, ये भी अटैच है, मैंने अब एक्सप्लेन किया था इसको, देखते कितने जन को याद है। मैंने कहा मैं इसे अल्केन कंसिडर कर रहा हूँ। करेक्ट, मैं इसे अल्केन कंसिडर कर रहा हूँ, तो इससे ये जो पूरा ग्रुप अटैच हुआ है, ये बेंजीन होगा क्या? नहीं, ये होगा फिनाइल। करेक्ट, मैंने बोला ना, जब बेंजीन अल्काइल बन जाएगा तो वो फिनाइल बन जाएगा। तो ब्रोमो फिनाइल मीथेन, ब्रोमो फिनाइल मीथेन, ये उसका क्या हो गया? IUPAC नेम। एक और एग्जांपल साइड में देता हूँ, देखो यहाँ पे मेरे पास बेंजीन रिंग है, फिर इसको मैंने अटैच किया CH2 और यहाँ पे लिख दिया Cl, तो लॉन्गेस्ट चेन में 2 कार्बन है, तो ये इथेन हो गया। तो 1 क्लोरो 2 इथाइल, सॉरी 2 फिनाइल। करेक्ट, 1 क्लोरो डैश 2 फिनाइल। वाई फिनाइल?
मैंने बोला ना ये अल्काइल की तरह काम करेगा। तो 1 क्लोरो 2 फिनाइल इथेन इज द व्हाट IUPAC। एक्चुअल लेवल में IUPAC में मैंने सब करवाया आपको, फिर भी यहाँ पे टाइप वाइज हम लोग देख ही रहे। क्लियर है सबको? अभी डाउट नहीं है ना? श्योर सब लोग? कम ऑन रिप्लाई मी फास्ट। अब नाम देखो क्या दिया है, इथिलिडीन डाइक्लोराइड 1,1 डाइक्लोरो। 1,1 मतलब क्या है? सेम कार्बन। 1,1 2,2 3,3 all are example of what? Geminal dihalides. Next 1,2 dichloro 1,2 adjacent मतलब vicinal dihalide. One more example 1,1 bromo propane क्या आएगा? Geminal. Then 2,2 dibromopropane again geminal. क्यों? सेम कार्बन है। अब देखो 1,2 डाइहाइड्रोप्रोपेन विसिनल, तो हमेशा याद रखेंगे इसे। देन ये क्लोरोफॉर्म है, ट्राइहेलोअल्कीन का एग्जांपल है, करेक्ट। आइडोफॉर्म ये टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव का एग्जांपल है। ये समझ में आ रहा है ना? ये सब हुआ है हम लोग का। बाकी ये सब कुछ आपको मैंने MCQ दिए हुए हैं, ये आपके होमवर्क में आएंगे। एनी डाउट? समझ में आ रहा है सबको? आगे बढ़े। ये तुम लोग की तरफ से आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है। देखो इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं इतना पूछ रहा हूँ। अच्छा म्यूट है, ओके। तो मैं किसी को भी अनम्यूट करूँ क्या? तो वो आंसर देगा। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग आज का न्यू पार्ट, दैट इज व्हाट? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्केन। हाउ विल यू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड? कैन आई स्टार्ट? है सब लोग रेडी? ध्यान है सबका? ओके, so before starting the preparation reaction of alkyl halide, what is preparation reaction? How many types of preparation reactions are there in this chapter? ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको हमें याद रखना है, मैं आपको बताऊंगा, याद रखो। ऐसे तो बहुत सारे रिएक्शन थे, देखो 11th में कुछ रिएक्शन थी थी। एक तो पूरा आपका 11th जो है वो ऑनलाइन में पढ़ाया गया है, आप लोगों के साथ इंटरेक्शन बहुत कम हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया था कि क्या होते हैं प्रिपरेशन रिएक्शन, करेक्ट। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कि 3 टाइप में ये जो प्रिपरेशन रिएक्शन है इसको हम लोगों ने डिवाइड किया है। पहले हाउ विल यू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोकार्बन, टेक्स्ट बुक में नहीं है उतना से डिटेल में, लेकिन हम लोग ये पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। एंड देन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, मतलब मैं अल्काइल हैलाइड से ही अल्काइल हैलाइड बनाऊंगा, ठीक है। अल्काइल हैलाइड से ही क्या बनाएंगे हम लोग? अल्काइल हैलाइड बनाएंगे। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मतलब अल्केन, अल्कीन, अल्काइन सब आ गया इसके अंदर। अल्कोहल तो आप सभी को पता ही है, ROH अल्कोहल। तो इसमें कुछ 4 रिएक्शंस है अल्कोहल में। हाइड्रोकार्बन में अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस है, तो उसमें हम तो पकड़ लेते 3 एक रिएक्शन उसमें भी है, ओके। एंड अल्काइल हैलाइड में भी 2 रिएक्शन। सर अल्काइल हैलाइड से अल्काइल हैलाइड, यस, दिस इज हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन एक्चुअली। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन मतलब यहाँ पे मुझे मेरे पास जो ब्रोमीन है उसको रिप्लेस करके मैं फ्लोरीन लेके आता हूँ, या फिर मैं उसकी जगह पे आयोडीन लेके आता हूँ, तो ये हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन हो गया। मतलब प्रिपेयर तो कर ही रहा हूँ ना। तो इस तरीके से टोटल जो है हमारे पास कुछ 9-10 प्रिपरेशन रिएक्शंस हैं। तो थोड़ा बड़ा है बट डिफिकल्ट नहीं है, ध्यान देंगे समझ में जरूर आएगा। पहले हम लोग अल्कोहल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नया है कुछ, समझने की कोशिश करेंगे।
देखो अगर ये वाला पार्ट खत्म हो गया तो नेक्स्ट चैप्टर यहीं से स्टार्ट हो रहा है, मतलब दो चैप्टर कंबाइन में पढ़ रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर में ये वाला पार्ट बट पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पार्ट जो है वो 11th में हो चुका है और ये किसी पूरे कहीं पे भी रिपीट नहीं होगा, बस नेमिंग रिएक्शंस है। तो इस तरीके से हम लोग इसे क्या करने वाले हैं, क्लास डिवाइड डिवाइड करने वाले हैं। तो ये बाद में पूरा चैट भी जो चार्ट जो है मैं बना के देने वाला हूँ इसका। रेडी, स्टार्ट करें। आर यू रेडी गाइस? हाउ द जोश? ओके, चलो। तो डोंट वरी, जो व्हाइट बोर्ड है वो भी अभी आएगा। ठीक है, लो सर। ठीक है, तो व्हाइट बोर्ड भी मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ कुछ एक्सप्लेन करने के लिए, दोनों कंबाइन में रहेगा और सब कुछ आपको पीडीएफ मिलने वाला है। ये जो लास्ट वाला जितना भी पार्ट था वो पीडीएफ ऑलरेडी पढ़ा के हो चुका है, वो ऑलरेडी आपके पास एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, लेकिन अभी जो स्टार्ट करने वाला हूँ मैं व्हाइट बोर्ड और वो दोनों कंबाइन करके पढ़ाऊंगा। एक्सप्लेनेशन पूरा व्हाइट बोर्ड पे रहेगा जो आपको आपस से मिलेगा, पीडीएफ भी मिलेगा, ये भी मिलेगा। रेडी? तो क्या है हमारे पास? methods of preparations of haloalkane from alcohol। तो उसके लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान दो, पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाद में पढ़ते हैं। सबसे पहला पार्ट है फ्रॉम अल्कोहल। अब अल्कोहल में होता क्या है ना, यहां से शुरुआत है। ध्यान से देखो, when ROH alcohol is treated with HX। ठीक है, एक सेकेंड, मैं ये रिमूव करता हूँ यहाँ से। मैं लिखता हूँ मेरा फर्स्ट पार्ट, दैट इज एक्शन ऑफ HX। ये फर्स्ट रिएजेंट है जिसे मैं यूज करने वाला हूँ टू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल। तो उसका जनरल रिएक्शन है, दैट इज व्हेन अल्कोहल ट्रीटेड विद HX हाइड्रोजन हैलाइड, इट गिव्स RX अल्काइल हैलाइड एंड वाटर बाय प्रोडक्ट में होगा। तो ये है मेरा जनरल रिएक्शन। करेक्ट, क्या हुआ था इसमें देखो, यहाँ से OH जो है H के साथ कंबाइन होकर वाटर फॉर्म कर रहा है और मुझे अल्काइल हैलाइड। तो इट्स सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस याद होना बहुत जरूरी है, एडिशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। व्हाट इज एडिशन रिएक्शन? अल्कीन अल्काइन में होगा, डबल बॉन्ड होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तो बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऐड कर सकते हैं। एलिमिनेशन में क्या होता है, बॉन्ड फॉर्म होता है, तो मेरे प्रोडक्ट में अल्कीन होगा, अल्काइन होगा। सब्स्टिट्यूशन में one atom replaced by another atom or one groups of atom replaced by another atoms or groups of atoms। So here hydroxyl group is replaced by what? Halogen group। Correct? Yes or no? आ रहा है समझ में? तो मैं कहूंगा when alcohol is treated with hydrogen halide, it gives corresponding RX means what? Alkyl halide। देखो अभी तक हम लोग ने जो पढ़ा है इससे हमें इसे आइडेंटिफाई करना आ गया। अब होता क्या, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हाउ विल प्रिपेयर इथाइल क्लोराइड फ्रॉम इथेनॉल, 2-chloropropan फ्रॉम। सर इन एडिशन बॉन्ड विल ब्रेक। यस डेफिनेटली बॉन्ड ब्रेक होगा, लेकिन बॉन्ड ब्रेक होने के लिए सिंगल बॉन्ड होके फायदा नहीं है, मिनिमम डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। मतलब एडिशन रिएक्शन टेक प्लेस इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड मीन्स व्हाट? अल्कीन और अल्काइन। करेक्ट, और कार्बोनिल कंपाउंड जहां पे डबल बॉन्ड होने चाहिए। यस और नो सुमित? हाँ, उसके एग्जाम्पल्स आएंगे जब हम लोग हाइड्रोकार्बन के रिएक्शन पढ़ेंगे, तो हम लोग एडिशन वाले रिएक्शन भी डेफिनेटली देखेंगे। तो आगे अगेन हम लोग देखते हैं, यहाँ पे मैं कुछ बता रहा था कि व्हेन अल्कोहल ट्रीटेड विद हाइड्रोजन हैलाइड इट गिव्स अल्काइल हैलाइड। और ये जो रिएक्शंस है ये सब सब्स्टिट्यूशन के रिएक्शंस है। करेक्ट। अब इसमें भी क्या इंपॉर्टेंट है देखो, अल्कोहल का अपना खुद का एक ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है। That is tertiary alcohol is more reactive as compared to primary as compared to secondary। and in HX अगर मैं कहूँ
तो HX में कहूंगा कि HCl इज वेरी लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू HBr, H कंपेयर टू HI। तो HI इज हाईली रिएक्टिव, ये हाईली रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है। अल्कोहल में प्राइमरी अल्कोहल लेस रिएक्टिव है, टर्शरी अल्कोहल मोर रिएक्टिव है। तो इनके ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के हिसाब से टोटल देखे जाएंगे तो 9 रिएक्शंस होंगे। कैसे? मैं HCl का रिएक्शन कर रहा हूं प्राइमरी अल्कोहल के साथ, सेकेंडरी के साथ, टर्शरी के साथ। सिमिलरली मैं HBr के रिएक्शन करूंगा प्राइमरी के साथ, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल। देन HI का रिएक्शन होगा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो टोटल जो है रिएक्शन कितने हो जाएंगे? 9। बट इन सभी रिएक्शन के लिए एक ही जनरल रिएक्शन है। आ रहा है समझ में? तो हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे। पहले देखेंगे HCl, देन HBr, देन HI। रेडी? आगे बढ़ते हैं, चलो। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहला पार्ट है दैट इज स्मॉल ए, यहाँ पे एक्स कैपिटल ए में लिखता हूं। फ्लोरीन क्यों नहीं है? फ्लोरीन हम लोग कहेंगे ना, देखो फ्लोरीन के रिएक्शन में क्या होगा, HF जो हम लोग यूज करते हैं विच इज क्लोजली बॉन्डेड, दे आर वेरी लेस रिएक्टिव, मतलब रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। ओके, बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होगा तो रिएक्शन कैसे होगा? एक्सप्लोजिव है, 11 में हुआ था एक्सप्लोजिव, पॉइजनस, बहुत सारे रीजन थे उसके पीछे। तो सबसे पहला आएगा दैट इज एक्शन ऑफ HCl। अभी मैंने बताया HCl तो क्या है, बहुत कम रिएक्शन। तो व्हेन अल्कोहल इज ट्रीटेड विद वेरी लेस रिएक्टिव HCl, ठीक है, तो मुझे मिलेगा RCl डेफिनेटली एंड वाटर बाय प्रोडक्ट में होगा। तो इसमें क्या होता है, तो मैं कहूंगा कि मेरे पास व्हेन अल्कोहल is treated with HCl it gives corresponding alkyl chloride। देखो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बहुत सिंपल है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है हाउ विल यू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल। तो इथाइल, इथाइल कैसे मिलेगा? फ्रॉम इथेनॉल, इथेनॉल इथाइल, प्रोपेनॉल प्रोपाइल, मिथाइल, जो भी है अल्काइल चेंज नहीं हो रहा है, बट यहाँ से OH जा रहा है, यहाँ से H। अब अगर HCl क्या है, लेस रिएक्टिव, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे क्या करना होगा, मुझे कैटलिस्ट यूज करना है। ध्यान है सबका? तो कौन सा कैटलिस्ट है? तो यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। याद रखो एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। ओके, तो याद रखो व्हेन HCl प्लस जिंक क्लोराइड, इन दोनों को कंबाइन में कहा जाता है लुकास रिएजेंट। क्या कहा जाता है? लुकास रिएजेंट। तो एग्जाम में पूछते हैं व्हाट इज लुकास रिएजेंट, व्हाट इज द एक्शन ऑफ लुकास रिएजेंट। ठीक है, एनहाइड्रस का मतलब होता है विदाउट वाटर, पानी नहीं है उसके अंदर, ड्राई। ओके, तो अब एग्जांपल्स है मेरे पास CH3CH2OH, इथेनॉल। देन मैं कहूंगा CH3CH3OH, that is propane to all, and CH3CH3CH3OH, tertiary butyl alcohol. So these are the examples of what? Primary, secondary and tertiary. Okay, इन सबका रिएक्शन मुझे करना है किसके साथ? HCl। ओके, अब मैंने कहा कि HCl क्या है, लेस रिएक्टिव, एंड अल्कोहल में भी कुछ चेंजेस है ना। क्या होगा? प्राइमरी अल्कोहल इज ऑल्सो लेस रिएक्टिव, HCl इज ऑल्सो लेस रिएक्टिव। तो मुझे यहाँ पे क्या यूज करना है? कैटलिस्ट एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, एंड उसे थोड़ा हीट भी करना पड़ेगा। ओके, रिफ्लक्स हीट एक ही है। बट अगर मैं सेकेंडरी के बारे में देखूं तो एज कंपेयर टू प्राइमरी, सेकेंडरी अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव।
तो मुझे यहाँ पे, बट HCl तो लेस रिएक्टिव है ही, तो मुझे यहाँ पे एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड यूज करना है, बट बिकॉज ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू प्राइमरी, मुझे यहाँ पे हीट करने की जरूरत नहीं है। बट व्हाट अबाउट टर्शरी? टर्शरी अल्कोहल इज वेरी हाई रिएक्टिव, तो HCl रिएक्टिव हो या नहीं हो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, रिएक्शन जो है वो रूम टेम्परेचर में हो जाता है। रूम टेम्परेचर मतलब मुझे हीट करने की भी जरूरत नहीं है, मुझे कैटलिस्ट की भी जरूरत नहीं है, याद रहेगा। बाकी कोई चेंजेस नहीं है, बाकी सब सेम है, OH जाएगा S के साथ सब में, और मिलने वाले प्रोडक्ट जो होंगे वो आपके सामने। क्या आएगा प्रोडक्ट बताओ, क्या मिलेगा प्रोडक्ट में मुझे? देखो मुझे मिलेगा CH3 CH2 Cl, then CH3 CH CH3, again OH replaced by Cl, here also CH3 C CH3 CH3 OH replaced by Cl, बाय प्रोडक्ट में सब में क्या आएगा? वाटर। क्लियर है सबको? मतलब क्या समझ में आ रहा है? ये वाला पार्ट जो है इसे याद रखना पड़ेगा, डोंट वरी, मैं इसे भी कैसे शॉर्टकट में याद रखना है वो भी ये खत्म होने के बाद बता दूंगा। ठीक है, क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। एक पार्ट हो गया कि व्हेन HX मतलब HCl अटैक कर रहा है अल्कोहल के साथ। अब B मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, दैट इज एक्शन ऑफ HBr। अब HBr का प्रॉब्लम ये है कि ये स्टेबल नहीं है, नेचर में अवेलेबल नहीं है, तो इसे प्रिपेयर करना पड़ता है। कैसे प्रिपेयर करते हैं? सो व्हेन NaBr सोडियम ब्रोमाइड is treated with sulfuric acid, that is H2SO4, it gives what? Na2SO4 and byproduct में आएगा HBr। बैलेंसिंग के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे 2 और ये 2 हाइड्रोजन 2 Br के साथ यहाँ पे 2 HBr फॉर्म करते हैं। डोंट वरी, ये आपको कोई पूछने वाला नहीं है कि इसका बैलेंसिंग क्या है वगैरह, बट ये कंडीशन जो है करेक्ट याद रखना जरूरी है। कौन सा? NaBr and H2SO4। तो कैसे लिखेंगे ध्यान से देखो, मैं जनरल रिएक्शन लिख रहा हूं। ठीक है, when ROH अल्कोहल ट्रीटेड विथ HBr नेचर में अवेलेबल नहीं है, इसलिए मुझे हमेशा लिखना पड़ेगा when NaBr treated with H2SO4 it gives what? RBr and H2O। बाकी सब तो सेम ही है, बराबर, बाकी सब तो सेम ही होने वाला है। क्या होगा? यहाँ से OH यहाँ से H जाएगा। so when alcohol treated with HBr in presence of NaBr sodium bromide and H2SO4 it gives corresponding alkyl bromide। क्लियर है सबको? अब अगेन अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, कुछ एग्जांपल्स अगेन मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, CH3 CH2OH, दिस इज एग्जांपल ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। CH3 CH CH3, this is example of secondary alcohol। CH3 C CH3 and CH3OH, this is the example of tertiary alcohol। When primary alcohol is treated with HBr, secondary alcohol is treated with HBr and tertiary alcohol is treated with HBr। देखो यहाँ पे HBr के साथ रिएक्शन हो रहा है, बट इन प्रेजेंस ऑफ नहीं, ये बनाया गया है। किससे बनाया गया है वो हमें पता होना जरूरी है। तो क्या है उसके लिए? तो मैं लिख रहा हूं, फॉर प्राइमरी NaBr is treated with concentrated H2SO4 because primary alcohol is less reactive, but as compared to primary, secondary alcohol is more reactive, hence we use NaBr with dilute H2SO4। डिफरेंस समझ में आया? फॉर प्राइमरी वी यूज कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 और सेकेंडरी वी यूज डाइल्यूट। अब मुझे बताओ डाइल्यूट से भी डाइल्यूट कुछ होता है क्या? नहीं, इसलिए टर्शरी में भी हम लोग NaBr विथ डाइल्यूट H2SO4 ही कहते हैं।
क्लियर हुआ सबको? तो फॉर प्राइमरी कॉन्सेंट्रेटेड एंड सेकेंडरी टर्शियरी इट डाइल्यूट। आगे तो OH जो होगा OH के साथ चला जाएगा, वाटर फॉर्म करेगा और मुझे मिलने वाले जो प्रोडक्ट हैं वो कुछ इस तरीके से होंगे। क्या मिलेगा मुझे? CH3 CH2 Br, CH3 CH, CH3 OH replaced by Br, CH3 C, CH3 CH3 OH replaced by what? Br, एंड सब में बाय प्रोडक्ट आएगा वाटर। एनी डाउट? नहीं समझा ऐसा कुछ है? पूछना है तो पूछ लो अभी। अगर समझ में आया तो फटाफट फटाफट यस 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 करके रिप्लाई आना चाहिए, या थंब दिखा दो, नो प्रॉब्लम। ओके चलो मैं इसको ऐड कर रहा हूँ। लास्ट पार्ट है दैट इज सी, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, दैट इज एक्शन ऑफ HI। नाउ HI इज हाईली रिएक्टिव, वो खुद ही क्या है? हाईली रिएक्टिव है। सो व्हेन अल्कोहल इज ट्रीटेड विथ HI इट गिव्स Ri प्लस H2O, रिएक्शन खत्म हो गया। व्हेन अल्कोहल इज ट्रीटेड विथ HI इट गिव्स करस्पॉन्डिंग अल्काइल आयोडाइड। डन, कैटलिस्ट की जरूरत ही नहीं है। व्हाट अबाउट प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल? अगर मैं कहूँ मेरे पास है प्राइमरी CH3 CH2OH ट्रीटेड विथ व्हाट? HI, क्या मिलेगा? CH3 CH2I, बाय प्रोडक्ट में क्या आएगा? H2O। यहाँ से OH जा रहा है, यहाँ से H। हाँ, अब प्राइमरी अल्कोहल इज लेस रिएक्टिव, हेंस हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे हीट करना पड़ेगा और प्राइमरी अल्कोहल ओनली। बट जैसे मैं कहूँ मेरे पास CH3 CH CH3 एंड OH सेकेंडरी अल्कोहल होगा HI के साथ, तो HI भी हाईली रिएक्टिव, सेकेंडरी अल्कोहल इज हाईली रिएक्टिव, मुझे कुछ भी कैटलिस्ट वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं है। सिमिलर फॉर टर्शियरी आल्सो, इजी है। एक पार्ट हो गया, एक पार्ट। हाउ विल यू प्रिपेयर अल्काइल हलाइड फ्रॉम हाइड्रोजन हलाइड? क्लियर है सबको? कम ऑन, पास, रिप्लाई दो जल्दी। अभी देखो शॉर्टकट में कैसे याद रखना है, हाँ सबके लिए। क्या होता है, जनरल रिएक्शन तो सेम है, बट अगर मैं यहाँ पे कहूं कि मेरे पास अल्कोहल है ROH, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी, करेक्ट। उसके बाद मैं कहूंगा मेरे पास HCl HBr एंड HI, ये तीन रिएजेंट्स हैं। तो सिर्फ रिएजेंट तो चेंज हो रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग को क्या क्या याद रखना पड़ेगा, ध्यान से देखो। अगर मैं कहूँ कि प्राइमरी अल्कोहल से सेकेंडरी अल्कोहल मोर रिएक्टिव है, सेकेंडरी से टर्शियरी ज्यादा रिएक्टिव है, HCl से HBr ज्यादा रिएक्टिव है, HBr से HI ज्यादा रिएक्टिव है, करेक्ट। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ HX एंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल। अब व्हेन प्राइमरी अल्कोहल इज ट्रीटेड विथ HCl, ऐसा अगर होगा तो हम लोग कैटलिस्ट क्या यूज करेंगे? वी यूज एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड विथ हीट। यस और नो? कम ऑन फास्ट, रिप्लाई आना चाहिए यस यस करके जो भी है। नेक्स्ट,
For secondary, we use anhydrous जिंक क्लोराइड, बट मुझे हीट करने की जरूरत नहीं है. एंड फॉर टर्शरी, रिएक्शन टेक प्लेस at room temperature only. Similarly, HBr when treated with primary alcohol, we use what? NaBr with concentrated H2SO4. For secondary, we again use NaBr but with dilute H2SO4. And for tertiary also, NaBr treated with dilute H2SO4. वही अगर HI की बात करेंगे तो प्राइमरी के लिए हीट करना है, सेकेंड टर्शियरी के लिए कुछ करना ही नहीं है. तो इस तरीके से मेरे जो 9 रिएक्शन थे उनको याद रखने की जरूरत नहीं है. ये टेबल याद रख लिया तो मेरे 9 के 9 रिएक्शन याद हो जाएंगे. इजी है, अब क्लियर है सबको, समझ में आ रहा है? ओके, तो चलो एक काम करते हैं, थोड़ा हम लोग हमारे पीपीटी पे अगेन जाते हैं. जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया वही आपके सामने, फ्रॉम अल्कोहल HX. ओके, क्या क्या दिए यहाँ पे, कुछ नाम एडजस्ट किए हैं यहाँ पे. उस नाम के बारे में अगर हम लोग देखेंगे, क्या है यहाँ पे, उस रिएक्शन को कि अल्कोहल विथ लुकास रिएजन, इस प्रोसेस को कहते हैं ग्रुप प्रोसेस. नीट में एंट्रेंस के लिए याद रखो. और ये जो रिएजन यूज कर रहे हैं उसके लिए लुकास रिएजन जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है. तो ये 2 नाम याद रखने हैं HX के लिए. करेक्ट. नेक्स्ट अगर हम लोग कहेंगे कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं. ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ HX एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल. नेक्स्ट NaBr when treated with H2SO4 it is alkyl bromide. बराबर. नेक्स्ट अगर हम लोग कहेंगे, हाँ यहाँ पे हो गया, ये शॉर्टकट वाला पार्ट है, मैंने आपको पूरा डिटेल में बाकी सब कुछ एक्सप्लेन किया है. किसी को डाउट है, HI का वगैरह यहाँ पे दिया नहीं है, बाकी सब इसी का इसलिए. किसी को डाउट है यहाँ तक? जो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं है, एग्जाम्पल्स नहीं है, वो मैंने आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन किया, वो सब आपको मिल जाएगा और आपको सबको लिखना है. पर वहाँ पे जो नाम जो है वो दिया नहीं है, नेमिंग आपको करना पड़ेगा. यस और नो, कम ऑन फास्ट, रिप्लाई नहीं आ रहा है. यस और नो, यस नो, कुछ तो बोलो. ओके. Why HI is most reactive? Good question. उसके लिए नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड याद होना जरूरी है. फिर भी बता रहा हूँ, ध्यान दो. क्या होता है, मेरे पास हाइड्रोजन है, उसका क्लोरीन के साथ बॉन्ड फॉर्म. फिर मेरे पास हाइड्रोजन है, उसका ब्रोमीन के साथ बॉन्ड फॉर्म. फिर मेरे पास हाइड्रोजन है, उसका आयोडीन के साथ बॉन्ड फॉर्म. अब हाइड्रोजन का एटॉमिक साइज तो सेम है, बट क्लोरीन का उससे बहुत बड़ा है एटॉमिक साइज. फिर हाइड्रोजन का यहाँ पे सेम ही रहेगा, बट ब्रोमीन का एज कम्पेयर टू क्लोरीन और एटॉमिक साइज बड़ा होगा. वही यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक साइज सेम रहेगा, बट आयोडीन का उसकी भी एटॉमिक साइज बड़ा होगा. तो बॉन्ड लेंथ जो है, समझ में आ रहा है कि नहीं? HCl का जो बॉन्ड लेंथ है, HBr का जो है, और HI का जो बॉन्ड लेंथ है, क्या होगा, HI का बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा होगा बिकॉज एटॉमिक साइज आयोडीन इज टू हाई. तो सिमिलरली बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा. नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड में आप पढ़ेंगे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये सब बॉन्ड ऑर्डर, ये सब पॉइंट्स है, दैट द पैरामीटर्स ऑफ, हम लोग कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड. ओके, तो एज अ बॉन्ड लेंथ इंक्रीजिंग, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजिंग. HI का बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, इसलिए वो इजीली ब्रेक होगा. जैसे वो ब्रेक होगा वो हाईली रिएक्टिव है, इसे ब्रेक करने के लिए टाइम जा रहा है, इसलिए कैटेलिस्ट यूज कर रहे हैं. और किसी को डाउट है? नहीं? चलो तो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट टाइप जो है वो है सेकेंड, दैट इज एक्शन ऑफ
SOCl2। और इस SOCl2 इसे हम लोग कहते हैं थियोनाइल क्लोराइड। नाम याद रखो, थियोनाइल क्लोराइड। द मोस्ट यूजफुल रिएजेंट टू प्रिपेयर अल्काइल क्लोराइड फ्रॉम अल्कोहल। Most useful reagent to prepare alkyl chloride from alcohol. So when ROH alcohol is treated with SOCl2 thionyl chloride in presence of pyridine, pyridine heteroaromatic compound है, ठीक है, हीट करना पड़ेगा। रिफ्लक्स भी लिखा होगा कहीं पे, रिफ्लक्स का मतलब हीट ही होता है। क्या मिलेगा मुझे? हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन, करेक्ट। और उसके बाद जो बाय प्रोडक्ट होगा वहां पे आएगा HCl एंड SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, एंड बोथ आर इन अ गैसियस स्टेट। So remaining both byproducts are in a gaseous state, hence मुझे क्या मिलेगा? प्योर अल्काइल क्लोराइड। अल्काइल क्लोराइड। देखो मेरे पास जो अभी HX था उसमें HCl, HBr, HI यूज किया था मैंने, मतलब वो रिएजन ऐसा था जिससे मैं अल्काइल क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड बना सकता हूँ। बट SOCl2 से मैं सिर्फ अल्काइल क्लोराइड बना सकता हूँ। तो व्हेन अल्कोहल treated with thionyl chloride, it gives only alkyl chloride। तो आपको एग्जांपल में कुछ नहीं करना है, CH3CH2OH एंड CH3CH3OH। समझो मुझे ये अल्कोहल दिए हुए हैं, आपको इनका रिएक्शन SOCl2 के साथ करना है, करेक्ट। क्या मिलेगा आपको? CH3CH2Cl प्लस HCl प्लस SO2, यहाँ पे CH3CH3 एंड Cl प्लस HCl एंड SO2। इजी है क्या? यस और नो? बोलो जल्दी। और यहाँ पे लिखना पड़ेगा कंपल्सरी पाइरिडीन। देखो पाइरिडीन जो है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर है या फिर बेसिक कंपाउंड है मैं कहूँगा, है ना। मुझे जो बाय प्रोडक्ट मिलते हैं जब वो एसिडिक होते हैं तो हम लोग उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए उसे यूज करते हैं, ठीक है, याद रहेगा। देखो ये जनरल रिएक्शन हो गया मेरा पूरा, और उसके जो एग्जांपल भी मैंने आपको दिए हैं, ये सब पार्ट जो है आपको वहां पर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान दो इसको। ये जान लो, करेक्ट। when alcohol is treated with when alcohol is treated with SOCl2 thionyl chloride in presence of pyridine, it is alkyl chloride। डार्जन मेथड का नाम इस रिएक्शन को नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर किसी ने पूछा तो। दिस इज बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर अल्काइल क्लोराइड बिकॉज द रिमेनिंग बाय प्रोडक्ट, करो ना, रिमूव इन वेपर स्टेट, मतलब वो गैसियस स्टेट में रिमूव हो जाते हैं, तो मुझे प्योर प्रोडक्ट मिलता है, इसलिए रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। याद रहेगा? यस और नो? पक्का? चलो देखो यहाँ पे क्या है, द फॉलोइंग रीजन यूजिंग ग्रुप प्रोसेस। ग्रुप प्रोसेस मतलब व्हाट? HCl एंड जिंक क्लोराइड, HCl एंड जिंक क्लोराइड, ये उसका आंसर होगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट अगर मैं कहूँ तो द गैसियस प्रोडक्ट लिमिटेड इन डार्जन मेथड, डार्जन मतलब SOCl2, क्या क्या आएगा? बोथ A एंड C, मतलब ऑप्शन क्या होगा, क्या आंसर आएगा? B, करेक्ट। नेक्स्ट तो अब है मेरे पास थर्ड, दैट इज एक्शन ऑफ CCl5 फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड। बहुत सिंपल रिएक्शन है, जल्दी खत्म करेंगे इसको। व्हेन अल्कोहल ट्रीटेड विद फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड, नेचर में फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड अवेलेबल है, फॉस्फरस पेंटा ब्रोमाइड, पेंटा आयोडाइड एग्जिस्ट नहीं करते, बराबर, स्ट्रक्चर के हिसाब से, बल्किनेस के हिसाब से।
तो मैं कहूँगा मेरे पास RCl, ध्यान से देखो स्ट्रक्चर में OH जा रहा है, एक Cl आ गया, देन HCl, एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ फॉर्म हो गया, बचा क्या? तो मैं कहूँगा यहाँ पे एक फॉस्फोरस है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है और 3 क्लोरीन है, इसको हम लोग लिखेंगे POCl3, इसे कहेंगे फॉस्फोराइल क्लोराइड। क्या कहेंगे बाय प्रोडक्ट में? फॉस्फोराइल क्लोराइड। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसमें मुझे जो मिल रहा है, क्या लिखेंगे इसके लिए? देखो कि when alcohol heated with phosphorus pentachloride, it gives corresponding alkyl chloride। ये उसका जनरल रिएक्शन है। तो मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, CH3CH2OH and CH3CH3OH, दो अल्कोहल है, इनका रिएक्शन आपको फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करना है। क्या आप लोग सॉल्व करेंगे? उसमें इस रिएक्शन में ओनली हाइड्रोक्सी ग्रुप इज रिप्लेस बाय क्लोरीन, yes or no? POCl3 द फॉस्फोराइल क्लोराइड बाय प्रोडक्ट में है। यस, ये आपका क्या हो गया? मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये होमवर्क है, सॉल्व करना है, ठीक है, कंटिन्यू करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट हम लोग कहेंगे जो रिएक्शन है एक्शन ऑफ अल्कोहल में, वो आज हम लोग पढ़ेंगे, रिएक्शन नंबर 4, ठीक है। तो वो होगा, दैट इज एक्शन ऑफ CH3, मतलब फॉस्फोरस ट्राइहलाइड। अब फॉस्फोरस ट्राइहलाइड मतलब मे बी वो फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड होगा, या फॉस्फोरस ट्राई ब्रोमाइड होगा, या फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड होगा। मतलब अगेन एक रिएजेंट है जिससे मैं अल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड सब बना सकता हूँ, ये कर लो, ठीक है। तो चलो एग्जांपल देख लेते हैं क्या है इस रिएक्शन में। When ROH alcohol is treated with phosphorus trihalide, फिर वो कुछ भी हो, आइदर क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो, आयोडाइड हो, मुझे मिलेगा RX अल्काइल हैलाइड, करेक्ट, एंड बाय प्रोडक्ट में होगा H3PO3, इसे हम लोग कहते हैं फॉस्फोरस एसिड। When alcohol is treated with phosphorus trihalide, it gives corresponding alkyl halide and phosphoric acid. What about balancing? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, करना पड़ेगा। 3 हैलोजन है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, तो मैं यहाँ पे हैलोजन को बैलेंस करने के लिए 3 लिखता हूँ। अगर यहाँ पे 3 हैलोजन बैलेंस करने के टाइम में देखा अल्काइल 3 हो गया, इसलिए ये 3 अल्काइल हो गया। अब यही 3 OH जो है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे अटैच है। तो बहुत बार कहीं टेक्स्ट बुक में, नोट्स में अगर आप देखेंगे तो POH प्राइस लिखा होगा, तो ये दोनों सेम ही है, याद रखो। H3PO3 बोलो या POH प्राइस देखो, दोनों सेम ही है, दोनों फॉस्फोरस एसिड ही है, करेक्ट है, याद रहेगा सबको। तो ये है मेरा जनरल रिएक्शन। अब व्हाट अबाउट कंडीशन? कंडीशन में इतना ही है, अगर मैं PCl3 यूज करता हूँ, वो नेचर में प्रेजेंट है, स्टेबल है, सिर्फ हीट करना पड़ेगा। बट अगर मैं फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड यूज करता हूँ, तो मुझे यूज करना पड़ेगा यहाँ पे रेड फॉस्फोरस विथ ब्रोमीन, तब जाके मुझे फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड मिलेगा। और वही अगर मैं कहूँ मेरे पास फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड यूज कर रहा हूँ, तो मुझे यूज करना पड़ेगा यहाँ पे रेड फॉस्फोरस विथ आयोडीन। इतने ही चेंजेस हैं, करेक्ट। बाकी आप कुछ भी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ CH3CH2OH treated with phosphorus trichloride प्राइमरी, फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पे CH3CH CH3OH सेकेंडरी अल्कोहल treated with
फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड एंड देन मैं लिखता हूँ यहाँ पे CH3 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 OH टर्शरी। तो क्या होगा, सेम OH रिप्लेस बाय क्लोरीन, तो बाकी सब तो चेंजेस होने वाले हैं नहीं कुछ, करेक्ट। क्या मिलेगा प्रोडक्ट में, तो मैं लिखूंगा CH3 CH2 Cl। यहाँ पे क्या आएगा CH3 CH CH3 OH रिप्लेस बाय Br, सॉरी रिप्लेस बाय व्हाट, Br। लास्ट में क्या आएगा CH3 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 और यहाँ पे आएगा आयोडीन, और इन सभी स्ट्रक्चर में H3PO3 क्या है, बाय प्रोडक्ट। अब ये याद रखना है कि जब भी मैं क्या यूज कर रहा हूँ, ट्राई हलाइड, जब भी मैं क्या यूज कर रहा हूँ, ट्राई हलाइड, क्या करना जरूरी है, बैलेंस करना बहुत जरूरी है। 3 अल्काइल और 3 अल्काइल यहाँ पे 100% रहेंगे, yes or no, क्लियर है, कंडीशन समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर फॉस्फोरस ट्राइहलाइड है तो मुझे हीट करना है, पर अगर वही ब्रोमाइड एंड आयोडाइड है तो जो नेचर में प्रेजेंट नहीं है, उसके लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, कैटलिस्ट, दैट इज रेड फॉस्फोरस। तो चलो इसी पूरे टॉपिक को एक बार हम लोग देखते हैं पीपीटी में, जो हमने देखा है यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखो मैंने भी बताया था कि मेरे पास देन अल्कोहल ट्रीटेड विद फॉस्फोरस ट्राइहलाइड 3 बैलेंसिंग के लिए यूज होगा, मुझे यहाँ पे बाय प्रोडक्ट में फॉस्फोरस एसिड मिलेगा, तो नो, ये उसके एग्जांपल्स हैं सेकेंडरी के, करेक्ट। नेक्स्ट अगर मैं देखूं क्या दिया है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड में भी सेम है, हीट करना है नॉर्मली मुझे, बराबर, एक जगह रिएक्शन एक एग्जांपल दिया हुआ है, एंड बाय प्रोडक्ट में आप देखेंगे यहाँ पे ये है फॉस्फोराइल क्लोराइड, यस और नो, यहाँ पे जो 3 है वो यहाँ पे दिखाई देगा आपको, ठीक है, थोड़ा सा फिक्स हुआ है, प्लीज एडजस्ट कर लो। नेक्स्ट SOCl2 का एग्जाम्पल तुम्हें, PCl3 के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, करेक्ट। तो इस तरीके से बहुत सिंपल है, यहाँ पे PBr3 PI3 वगैरह कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन मैंने आपको सब लिख के दिया हुआ। एग्जाम्पल्स है, द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड, कौन बताएगा, क्या बताया था मैंने, बेस्ट मेथड टू प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड इज व्हाट, when alcohol is heated with PCl3, when alcohol is heated with HCl and zinc chloride, when alcohol is heated with, means reflux with thionyl chloride SaCl2, and when alcohol is reflux with PCl5, क्या आएगा, C is the correct answer, very good। बताया था ना मैंने, why, because remaining byproducts are in a gaseous state, yes or no। नेक्स्ट अगर मैं कहूँ, in the case of hydrohallucination of alcohol, the order of reactivity, correct order of reactivity of hydrogen halide, A is the correct answer, very good। HI is highly reactive as compared to HBr and then HCl, शाबाश। समझ में आ रहा है क्या सबको, एक का आंसर आया है A, बाकी सब लोग का है कि नहीं, ओके चलो आगे। What is the product when alcohol is treated with phosphorus triiodide, PI3, अभी बताया मैंने, फॉस्फोरस ट्राइआयोडाइड, क्या मिलेगा प्रोडक्ट, सी अल्काइल आयोडाइड, बराबर। फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड होगा तो अल्काइल ब्रोमाइड, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड होगा तो अल्काइल क्लोराइड, करेक्ट। नेक्स्ट, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल व्हेन हीटेड विथ और ट्रीटेड विथ कॉन्सनट्रेटेड HCl, इट गिव्स व्हाट, तो सर हम लोग को स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा, बराबर। क्या है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, तो CH3 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 एंड OH, तो ये है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इसका रिएक्शन HCl के साथ करेंगे तो क्या होगा, ये चला जाएगा, ओके, तो हम लोग इसे रिमूव करते हैं यहाँ से, ये चला गया, बराबर ना, मतलब OH इज रिप्लेस बाय व्हाट, Cl, तो ये मेरा आंसर है। तो इसका नाम क्या है, व्हाट इज द IUPAC नेम फॉर दिस स्ट्रक्चर,
तो मैं कहूंगा लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन है, प्रोपेन हो गया, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड ये भी करेक्ट है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन भी करेक्ट है। ए एंड सी बोथ आर करेक्ट, हेंस आंसर इज व्हाट? डी। आया समझ में? यस और नो? तो हमेशा ध्यान रखने का कि हम लोग को ऑप्शन क्या दिया हुआ है, क्या पूछा हुआ है, ये सब हम लोग को समझ में आना चाहिए। ऑप्शन ए इज ऑल्सो करेक्ट, ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट। तो इसके लिए मुझे ऑप्शन क्या है? डी मेरा आंसर है। तो यहाँ पे हम लोग ने एक पार्ट जो था प्रिपरेशन रिएक्शन का, वो हम लोग ने कंप्लीट किया। करेक्ट? तो हाउ विल यू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल? अल्कोहल में 4 रिएजेंट हम लोग ने यूज किए, दैट इज HX, SOCl2, PCl3 and PCl5. Any doubt? आज जितना पढ़ा है उतना समझ में आया सबको? शायद मैं जहाँ तक मुझे लग रहा है, आपको ये जितने भी पीडीएफ हैं, जितना भी हम लोग का चल रहा है, वो सब पीडीएफ आपको मिल चुके होंगे। ठीक है? तो एचडीए का ये जो प्रिपरेशन वाला पीडीएफ है, जहाँ तक मैंने अभी आपको पढ़ाया है, यहाँ तक आपको लिखना है। इसके बाद सेकेंड पार्ट शुरू होगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में जैसे ही सेकेंड पार्ट होगा उसके बाद मैं बताऊंगा। यहाँ तक आपको ये कम्प्लीटली लिखना है, पूरा क्वेश्चन आंसर जितना जो भी है। और जो पार्ट मैं यहाँ पे आपको जो पार्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, मैंने इसमें लिखा हुआ है बोर्ड पे, ये भी आपको मिलेगा, ये भी लिखना है। हाँ, ये मिल जाएगा, जिसको नहीं मिला उसको मिल जाएगा। ठीक है? तो ये जो पीडीएफ है ये भी आपको मिलेगा, और जितना पढ़ा है वो भी मिलेगा। ओके? किसी को कुछ पूछना है और? ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए। बाय एवरीवन। अच्छा पुनीत, हेलो, आर यू देयर? पुनीत, पुनीत है कि गया? हेलो पुनीत। हाँ सर। हाँ, आपका वो डाउट मैंने अभी पढ़ा, क्या वो पूछा आपने, POCl3 का स्टेट क्या होगा, राइट? लिक्विड बेटा। ओके। हाँ ठीक है सर। हेलो। हाँ सर। हाँ, ठीक है। देखो वैसे तो हम लोगों को कुछ है ना, ये बाय प्रोडक्ट से कुछ ज्यादा लेना देना है नहीं, हम लोग को प्रोडक्ट पे ही ध्यान देना है पूरा। ओके, चलो मिलते हैं बाकी सब लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बाय एवरीवन।